महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह यहाँ मौजूद है। That Almighty God, Jesus Christ, is present here. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. ये एक जीवित कलीसिया है This is a living church, और हम एक जीवित परमेश्वर की आराधना करते and हैं। we serve a living God. Amen. So इससे पहले हम वचन में जाएं, क्यों ना आप before- सब अपने हाथ को उठाएं Before we go into the word, let us lift up our hands wherever we are. और हम उस नाम को आज इस जगह में उठाते हैं जो नाम सबसे श्रेष्ठ है। And we lift up the name that is greater than any other name. परमेश्वर का वचन कहता है स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर और कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा मानव जाति उद्धार पा The सके। word of God says there is no other name under heaven and on the earth through which mankind can be saved. केवल एक नाम। Only one name. प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो कुछ तुम पिता से मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हें देगा। Lord Jesus said, whatever you will ask the Father in my name, He will give it to you. सो आज जो हम कलीसिया में इकट्ठा होते हैं ये कोई ईसाई रीति रिवाज नहीं है। So today when we are gathered here in the church, this is not a Christian ritual. आज जो हम प्रार्थना करते हैं ये कोई ईसाई रीति रिवाज नहीं है। When we pray today, this is not a Christian ritual. हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है We know that our God is a prayer answering God. और उसका वचन कहता है उसकी हर एक प्रतिज्ञा हाँ और आमीन के साथ हमारे जीवन में पूरी होती है। And His word says every promise of God is fulfilled in our life with a yes and a amen. Amen. सो आज जो आप उसके पास आए हो एक उम्मीद के साथ, स्वर्ग आपकी प्रार्थना के ऊपर हाँ और आमीन की मुहर लगा रहा है। So today when you have come to Him with a request, with a prayer, the heavens are putting a stamp of a yes and a amen on that prayer. एक मिनट के लिए एक बड़ी प्रेज प्रभु यीशु मसीह को दो इस जगह For a minute, give a loud praise to the Lord Jesus. Give him the best praise you Some can because he is worthy, he is mighty, there is no one like my Jesus. सबसे उत्तम स्तुति यीशु को दो, वो महान है, सर्वशक्तिमान है, मेरे यीशु जैसा कोई नहीं अपनी है। आवाजों को उठाओ। Lift up your महान voices. स्तुति, एक महान प्रेज प्रभु यीशु मसीह को। Give a mighty praise to King Jesus. Hallelujah. Amen, amen, amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. आइए हम प्रार्थना करेंगे और फिर हम वचन में Let चलें। us pray and go into the word. परमेश्वर पिता, हम आपके पास प्रभु यीशु मसीह के नाम से आते हैं। Heavenly Father, we come to you in the name of Jesus. हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, क्योंकि आप एक अच्छे पिता हैं। We thank you, Father, that you are a good God. आप ज्योति हैं और आप में कोई अंधकार नहीं है। You are light and in you is no darkness. पिता होने दे, आज अपने वचन को आप अपने लोगों के ऊपर प्रकट करें। Father, may it be that you reveal your word to your children today. पवित्र आत्मा, Holy आप Spirit, हमारे शिक्षक हैं, आप हमारे सहायक हैं। you are our teacher, you are our helper. प्रभु, आपके बिना हम वचन को नहीं समझ सकते। Lord, we cannot understand the word without you. अपने वचन के भेद को, अपने वचन के प्रकाशन को आज अपनी कलीसिया के ऊपर प्रकट कर प्रभु। Reveal the secret of your word, the revelation of your word over your church today, कि प्रभु हम लोग सयाने हो जाएं, हम लोग बालक ना रहें। so that we may become mature, we may not remain children. प्रभु यीशु मसीह के नाम में। In the name of our Lord Jesus. और कलीसिया कहती And the है church says, आमेन, आमेन। आप सब बैठ सकते हैं। you can be seated. हम लोग राइचियसनेस जो के ऊपर एक सीरीज कर रहे हैं। We are doing a series on righteousness. और मैं चाहता हूं जहां पे भी आप हैं बहुत ध्यान धर कर इस वचन को सुने। And wherever you are, I want you to hear this word intently. मुझे पता है आप में से कई लोग आए हैं, आपको चंगाई चाहिए अपने शरीर में, आप चाहते हैं परमेश्वर आपके लिए बहुत कुछ करे, मगर हमेशा याद रखें कि जो परमेश्वर का आत्मा कार्य करता है वो वचन
को चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा प्रमाणित करता है। I know many of you have come here for a healing and you want God to do something for you. But when the Holy Spirit does something, He takes the word and establishes it in the form of miracles and signs. Amen. यानी अगर आप वचन को ध्यान धरकर सुनते हैं So that means if you hear the word carefully, तो 100% आप अपना मिरेकल लेकर जाएंगे। then 100% you will take your miracle with you. हालेलुया। Hallelujah. सो अब हम लोग राइचियसनेस आज दूसरा पार्ट है। So now this is the second part of the righteousness series. और मैंने पहले भी आपको बताया था इस मैसेज से शैतान नफरत करता है And I had told you earlier, the devil hates this message. और इस मैसेज को बहुत अटैक किया गया है, And this message has been attacked so much. किया जा रहा है। It is still being attacked. और जो नहीं समझे आत्मा को वो अटैक करते रहेंगे। And those who do not understand the Spirit will keep on attacking this message. मगर अगर आप इस प्रकाशन को समझ गए But if you will understand this revelation, तो आप पृथ्वी पर राज्य करेंगे। then you will reign on the earth. आमेन। चलिए जल्दी से इब्रानी 5:12, Let us go to Hebrews 5:12. इब्रानी 5:12 और 13 में पढ़ूंगा। Hebrews और 5. परमेश्वर का वचन उन विश्वासियों के लिए कह रहा है जो अब विश्वास में आए हुए उनको बहुत समय हो चुका है। Hebrews 5:12 and 13, the Bible is talking to those believers who have been in the Lord for some time. ध्यान से सुनिए। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था या शिक्षक हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। For though by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you again the first principles of the oracles of God, and you have come to need milk and not solid. तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। For everyone, you have become as if you need milk and not solid food. NLT में मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। It's beautiful. I'll read it in NLT, it's beautiful. For you have been believers so long, तुम इतने लंबे समय से विश्वासी हो, now that you ought to be teaching others. अब तक तो तुम्हें दूसरों को सिखाने वाला होना चाहिए। Instead, you need someone to teach you again the basic things about God's word. लेकिन जरूरत ये पड़ रही है कि तुम्हें कोई परमेश्वर के बारे में प्राथमिक बातें सिखाए। You are like babies who need milk and cannot eat solid food. तुम उन बच्चों की तरह हो गए जो खाना नहीं खा सकते ठोस, उनको दूध चाहिए पीने के लिए। Apostle Paul is talking about many believers. पौलुस प्रेरित बहुत से विश्वासियों की बात कर रहे हैं यहाँ पे। आज भी कई विश्वासी हैं, उन्हें केवल दूध चाहिए। Even today there are many believers who just need milk. वो वचन की जो गूढ़ शिक्षाएं हैं उनको सहन नहीं कर सकते। They cannot bear the solid food of the word और of God. इसीलिए सालों हो गए कलीसिया में जाते हुए, मगर आज भी आत्मा में बच्चे हैं। And this is why they have been going to church for years, but they are still children, they are still babies in the spirit. ये कौन विश्वासी हैं जिनके लिए बाइबल कह रही है कि सालों के बाद भी आज भी वो बच्चे हैं? Who are these believers that the Bible is saying they are babies still after years? Verse 13. 13वीं आयत। For everyone who partakes only of milk is unskilled in the word of righteousness, for he is a babe. क्योंकि दूध पीने वाले को तो धार्मिकता के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वो बच्चा है। सो बाइबल के अनुसार आपकी बाइबल में भी है, ये मैं नहीं बोल रहा, बाइबल के अनुसार अगर आपको धार्मिकता की शिक्षा का ज्ञान नहीं तो आप परमेश्वर की नजर में अभी एक दूध पीते हुए बच्चे हैं। So according to your Bible, this is in your Bible, and it says if you do not have the understanding of the revelation of righteousness in the sight of God, you are still babies. इससे फर्क नहीं पड़ता आप कितना उपवास करते हैं, कितनी प्रार्थना करते हैं, कितने समय से चर्च जाते हैं। It does not matter how much you fast or pray or you go to church.
अगर आपको धार्मिकता का प्रकाशन नहीं है तो आप दूध पीने वाले बच्चे हैं परमेश्वर के राज्य में। If you do not have the revelation of righteousness, you are a baby in the eyes of God. और बच्चे कभी भी राज्य और प्रभुता नहीं कर सकते। And babies cannot have dominion, they cannot reign, they cannot rule. हालेलुया। इब्रानी 6, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, थोड़ा शॉकिंग है कई लोगों के लिए, Let's go to Hebrews 6. It's a little shocking for some people. क्योंकि कई विश्वासी जो सोचते हैं ठोस खाना है और हम पे ये एलिगेशन लगाते हैं कि हम वो नहीं सिखाते, वो एक्चुअली में मिल्क है राज्य में। Because what some people think is solid food and they put that allegation on us saying we don't teach that is actually basic milk for children. अब एक बार फिर से जाइए इब्रानी 5:12 में, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। Let's see again Hebrews यहाँ पे 5:12. देखिए लिखा है फर्स्ट प्रिंसिपल्स, It says प्राथमिक बातें, फर्स्ट प्रिंसिपल्स, जो शुरुआती बातें हैं। यानी जब आपने अपने बच्चे को, कोई ऐसा है जो अपने बच्चे को 10th क्लास में एडमिशन कराता है कोई? Is there anyone who directly admitted their child in हम 10th? प्ले स्कूल में भेजते हैं अपने बच्चों को, We है ना? put them in play school, right? नर्सरी में भेजते हैं। Then in तो nursery. वहां पे क्या सिखाया जाता है बच्चों को? What do they teach them there? A for apple, B for ball। पर आपका बच्चा भी 20 साल का हो गया और वो कह रहा है A for apple, B for ball, तो कुछ दिक्कत है। If your child is 20 years old now and he's still talking things of nursery class, there is a problem. A for apple, B for ball राज्य की पहली एलिमेंट्री टीचिंग है। क्योंकि ये चीजें जो these are the first principles of kingdom. मगर ये पहली एलिमेंट्री शिक्षाएं क्या हैं? इब्रानी 6। What are these basic principles? What are these basic teachings? इसीलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर, क्या कह रहा है वचन? इसीलिए आओ मसीह की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं। Therefore, leaving the discussion of the elementary principles, let us go on to perfection. अरे ये पाप के बारे में नहीं सिखाते, अरे पाप पश्चाताप, अगर यही करते रहोगे तो कभी मसीह लोग सयाने नहीं होंगे विश्वास में। Oh, they don't teach about sin. If you keep teaching about sin and repentance, believers will never be mature in the Lord. और आपको एक बात बता दूं, अगर रिपेंटेंस होता है तो हर संडे इस कलीसिया में होता है, क्योंकि मन बदलते हैं, लोग जानते हैं वो नई सृष्टि हैं, लोग जानते हैं उनका अधिकार क्या है और लोग जय में चलते हैं, उनके जीवन के फल बताते हैं कि उन्होंने रिपेंट किया है। And let me tell you, if there is repentance, it happens every week in this church where people's minds are renewed, they find out who they are in the Lord, their hearts are changed, their thinking is transformed. Amen. रिपेंटेंस प्रभु मैं पापी हूं कहना नहीं है। Repentance is not, oh Lord, I'm a sinner. वो पेनेंस है, वो पश्चाताप है। पश्चाताप अलग है, रिपेंटेंस का मतलब है मन का बदलाव होना। Penance is a different thing. Repentance means a change of thinking, a हर change of संडे mind. आप गवाही देखते हो, हमें नहीं पता था पहले, अब हम अपना अधिकार जान गए हैं, घोषणाएं करते हैं, अरे यही तो असली रिपेंटेंस है। Every Sunday you watch testimonies, people saying, we did not know we had authority, we learned to take authority, we learned to make declarations. This is repentance. Amen. मैं अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं कर रहा, वचन पढ़ रहा हूं आपके सामने। I am not adding anything to this. I'm just ध्यान reading the धरकर word. सुनना। Hear carefully. Amen. Amen. इसीलिए आओ, So, इसीलिए बोलो आओ, परमेश्वर हमारे लिए कह रहा है, इसीलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं। therefore, leaving the discussion of elementary principles, let us go on to perfection. English Bible says not laying again the foundation.
बाइबल कहती है फिर से वो नींव ना रखें. अगर आपको घर बनाना है If you want to build a तो house, सबसे पहले नींव डालना बहुत जरूरी है. then it is very important to lay the foundations first. मगर यहाँ नींव डाला फिर यहाँ नींव ही डालते रहोगे तो घर नहीं बनेगा कभी. But if you put a foundation here and a foundation there, if you keep laying the foundation, अगर you'll घर never build a बनाना house. है, नींव डल गई भैया, उसके बाद और तो बनाओ. If you want to build a house, you've laid the foundation, now build above it. पाप से पश्चाताप करो, पाप से पश्चाताप करो. अरे sin and भैया वो repent. एलिमेंट्री टीचिंग है, आगे बढ़ो उससे. Sin and repent, sin and repent. That is the basic teaching. Move ahead of it. आमेन. आपकी बाइबल में भी है. This is in your Bible. हम किसकी तरफ बढ़ जाएं? सिद्धता की ओर. अब ध्यान से Towards सुनो. what do we go? Perfection. क्या है एलिमेंट्री प्रिंसिपल्स? What are these elementary teachings? नॉट लेइंग अगेन द फाउंडेशन. फिर से हम ये फाउंडेशन ना डालें. बाइबल कह रही है Let us not lay this foundation again. मरे हुए कामों से मन फिराना, Repentance from dead works, परमेश्वर पर विश्वास करना. faith towards God. परमेश्वर पर विश्वास करने से आप शुरू होते हो और ग्रेजुएट होते हो परमेश्वर का विश्वास पे. You start from faith towards God and you graduate with the faith क्योंकि of जब God. मैंने यीशु में विश्वास किया मैंने नया जन्म मांग पा लिया. मगर अब मेरे पास यीशु का विश्वास है, इसलिए मैं पहाड़ों को हटा सकता हूं. Because when I believed in Jesus, I believed, I had faith on Him and I got a new life, but Amen. now I have His faith. चर्च, ग्रेजुएशन का समय आ चुका है. Church, it is time for graduation. आमेन. हालेलुया. हमें आदि की शिक्षाओं की बातों से बढ़कर आगे जाना है गूढ़ रहस्य में. और बाइबल बताता है स्ट्रॉन्ग मीट, जो गूढ़ शिक्षा है वो है राइचियसनेस का मैसेज. We have to move out of the basic things of the Lord and go into the deep secrets of the message of God, and that is the message of क्यों righteousness. आज मसीहों की हालत ऐसी है? Why are believers in this अरे condition किसी today? ने काला धागा कर दिया, Oh, somebody हमारे घर के बाहर नींबू काटा है. अरे कोई हमारे ऊपर जादू टोना कर रहा है. अरे हमारे ऊपर ओ पास्टर जी ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आज तक नहीं समझे कि धार्मिकता क्या होती है. Why do believers talk like this? Somebody's done black magic over us. There was a lemon outside our house, because they don't have the understanding of what righteousness is. परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों और हाथ रखने, मरे हुओं को जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से ना डालें. Of the doctrines of baptism, of laying on of hands, of resurrection of the dead, and of eternal judgment, do not lay these basic foundations again. अगर आप देखें मैक्सिमम लोग यही सिखाए जा रहे हैं 20-30 साल तक. अरे परमेश्वर कह रहा है अगर सिद्धता में जाना है तो आगे बढ़ो, धार्मिकता के वचन को समझो, जानो कि मसीह ने तुम्हारे लिए क्या कर दिया है. If you will see, maximum number of people are teaching this for 20-30 years, but Bible is telling us if you want to go into perfection, leave these basic foundation teachings that you have already laid and go towards the teaching of righteousness. नींव बहुत जरूरी है नए विश्वासियों के लिए. Foundation is very important for new believers. इसके बिना हम आगे नहीं जा सकते. Without that, we cannot मगर move भाई forward. एक बार नींव डाल दी तो आगे बढ़ो. But when you have already laid the foundation once, now move ahead. मैं तब तक नहीं परमेश्वर में बढ़ा जब तक मैं उसी पाप पश्चाताप, पाप पश्चाताप, पाप पश्चाताप. सालों तक एक ही वर्ड सुना, पापी हो पश्चाताप करो, पापी हो पश्चाताप करो, पापी हो पश्चाताप करो. किसी ने नहीं बताया कि भैया जो मसीह में है वो पापी नहीं हो सकता. I did not start to grow in the Lord until I was in the teaching of sin and repent, sin and repent, sin and repent. Nobody told me that now what Jesus has done for you, you're not a sinner anymore. Amen. Amen. फिर से आओ 13 में. मैं चाहता हूं ये वचन आपके अंदर घुस जाए आज. I want this word आप to go समझ deep जाओ. in you, so you understand. Hallelujah. Verse 13. 13वीं आयत. क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धार्मिकता के वचन की पहचान नहीं होती क्योंकि वो बालक है. Because everyone who drinks milk is unskilled in the word of righteousness, for he is a baby. Amen. अब समय आ गया है ठोस खाना खाने का. It is time to eat solid food. अब समय आ गया है
परमेश्वर के राज्य की गूढ़ बातों को जानने का। The time has come to know the deep things of the kingdom of God. हालेलुया, प्रेज गॉड। क्यों? मैंने क्या बताया आपको, ये नींव है। अगर आपने धार्मिकता की शिक्षा को नहीं समझा, आप कभी जय में नहीं चल सकते। This is the foundation. If you do not understand the teaching of revelation, you can never walk in victory. कितने लोग जय में चलना चाहते हैं इस जगह में? How many people want to walk in victory here? कितने लोग एक जयवंत जीवन जीना चाहते हैं इस पृथ्वी पे? How many people want to live a victorious life on the ये earth? मत बोलना स्वर्ग में जिएंगे, स्वर्ग में तो हर कोई जिएगा। Don't say we'll live a victorious life in heaven. Everyone will live a victorious life there. आमेन। स्वर्ग में तो हर कोई जिएगा, Everyone will live a victorious life हम there. यहाँ भी जिएंगे। But even here we have to live a victorious life. आमेन, Amen. हालेलुया। Hallelujah. चलिए वापस इसमें आते हैं। दूसरे कुरिन्थियों 5:21 में आपको जल्दी से कुछ बताना चाहता हूँ और तब हम वचन में प्रवेश करेंगे। 2 Corinthians 5:21. I'll quickly tell you something and we go to the word. आपको याद है मैंने आपको एक इलस्ट्रेशन किया था, कैसे परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को क्या बना दिया? क्या बना दिया? पाप बना दिया, ताकि हम क्या बन जाएं? धार्मिकता बन जाएं। Remember I showed you an illustration how the Father made Jesus to be sin so that we may become the righteousness of God. यीशु मसीह पाप कैसे बना? How did Jesus become sin? फिर से एक रिवीजन कर रहा हूं मैं आपको। I'll do a quick. यीशु मसीह पाप कैसे बना? How did Jesus become उसने sin? कोई पाप नहीं किया, Because he did not do any sinful act, मगर उसने पाप के स्वभाव को रिसीव किया। but he received the nature of sin. क्योंकि पाप क्या है? एक What is sin? पाप क्या है? What is sin? स्वभाव है। It's a nature. हिंदी में मैं इसको एक्सप्लेन करना मुश्किल है, इंग्लिश में आसान है, क्योंकि इंग्लिश में बाइबल दो चीजें बोलती है, सिन यानी पाप और सिंस। जब बाइबल कहती है सिन तो ये है नाउन या ये है नेचर, जब बाइबल कहती है सिंस ये है वर्ब या ये है कर्म। In English it says sin and sins. Sin is a nature, it's a character, it's a personality. Sins is a verb, an act. Amen. So पिता ने क्या किया? How did Jesus became sin? He received our sin. What did the Father do? Jesus received our sin. उसने हमारा पाप ले लिया. How did we become righteous? हम धर्मी कैसे बन गए? We received righteousness. हमने धार्मिकता को ले लिया. We received righteousness. हमने धार्मिकता को ले लिया. आज भी कितने मसीह हैं जो ये सोचते हैं जितना ज्यादा धार्मिक काम मैं करूंगा उतना धर्मी मैं बन जाऊंगा। Even today many believers think as many righteous works I do, I will become more and more righteous. क्योंकि धार्मिकता के वचन से अनजान हैं, क्योंकि बच्चे हैं और दूध पी रहे हैं। Because they are unskilled in the word of righteousness and they are babies and they drink milk. Come on. Amen. मगर मैं ये विश्वास करता हूँ But I believe यहाँ सयाने लोग हैं। that there are mature people here. Amen. अगर परमेश्वर आपको यहाँ लेकर आया है क्योंकि आपकी भूख है और बढ़ने की वचन में और जानने की, आगे जाने की। If the Lord has brought you here is because you are hungry to grow in the word, to go further, to go farther. Amen. Hallelujah. प्रकाशित वाक्य 5:10। Revelation. प्रकाशित वाक्य 5:10। और क्या कह रही है? यीशु मसीह ने क्या किया है? He has made us kings and priests to our God. What has Jesus done? उसने हमें राजा और याजक बना दिया अपने परमेश्वर के लिए. क्यों बनाया हमें राजा और याजक? Why has he made us Is kings this a and priests? title? ये कोई ओहदा है? क्या ये धार्मिक टाइटल हमें दे दिया, अब हम राजा और याजक हैं? Is this a religious title now we are? नहीं, बाइबल क्या कह रही है? क्योंकि अब परमेश्वर ने हमें राजा और याजक बना दिया है, हम क्या करेंगे? राज्य करेंगे। हाँ पास्टर, हमें पता है हम स्वर्ग में राज्य करेंगे। अरे बाइबल अच्छे से पढ़ो, क्या लिखा है? कहाँ राज्य करेंगे? कहाँ राज्य करेंगे? पृथ्वी पे राज्य करेंगे। So he has made us kings and priests. Yes, pastor, we know we will reign in heaven. No. Read carefully. It says we will reign on the earth. कहाँ राज्य करेंगे? Where are we going to reign? हाँ,
अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, आप अभी पृथ्वी पे हो। If you don't know, let me inform you, you are on the कहाँ earth हो at आप this moment. बैठे? Where are you? पृथ्वी में बैठे On हो the तो earth. कहाँ राज्य करोगे? Where are you बोलो यहाँ supposed to राज्य reign? करूंगा। बोलो I will reign here. आमेन। यानी जहां आप हो परमेश्वर वहां आपको राज्य कराएगा, वहां आप प्रभुता में चलोगे, वहां आप परमेश्वर के महान कार्यों को देखोगे। That means wherever you are, you will reign there. God will do mighty things in and through your life. आमेन, हालेलुया। अगर चांद में होते तो शायद नहीं कर पाते प्रभुता, मगर बाइबल कह रहा है धर्मी लोग जो हैं, जो राजा और याजक बनाए जा चुके हैं, वो पृथ्वी में राज्य करेंगे। The Bible is saying those who are righteous, who have been made kings and priests, will reign on the earth. Does the Bible say he will make us kings and priests? क्या बाइबल कहती है वो हमें बनाएगा राजा और याजक? हाँ, बना चुका है। He has made us. क्या करेंगे हम लोग? What will we do? राज्य करेंगे, We will reign. राज्य करेंगे। We will reign. जो धर्मी लोग हैं ना, The righteous people, उनकी ग्रिडी नहीं है इस बात की। they have no कहते हैं, understanding. राज्य केवल परमेश्वर कर सकता है। They say only God can reign. हाँ, मगर उसी परमेश्वर ने कहा अपने वचन में कि तुम राज्य करो। Yes, but the same God in His word said, you will reign. उसी परमेश्वर ने अपने वचन में कहा क्योंकि मैं राज्य करता हूं, मेरे बेटे और बेटियां भी राज्य करेंगे। The same God, He said, because I reign, my sons and daughters will also reign. बोलो मुझे राज्य करने के लिए बनाया गया है। Say, I have been made to rule and reign. आमेन। पृथ्वी में किस चीज में राज्य करेंगे? बीमारियों के ऊपर राज्य करेंगे, डिप्रेशन के ऊपर राज्य करेंगे, गरीबी के ऊपर राज्य करेंगे, दुष्ट आत्माओं के ऊपर राज्य करेंगे, शैतान की सारी युक्तियों और झूठ के ऊपर राज्य करेंगे। What will we reign over? We will reign over sicknesses, we will reign over poverty, we will reign over every lie of the devil. Amen. Hallelujah. यही मैं चाहता हूं आप समझो। This is what I want you to understand. The gospel is not about what you do. The gospel is about who you are in Christ Jesus. आप क्या करते हो इसके बारे में सुसमाचार नहीं है, आप कौन हो इसके बारे में है सुसमाचार। मैं फिर से बोलता हूं इसको, सुसमाचार इसके बारे में नहीं है कि आप क्या करते हो, सुसमाचार इसके बारे में है कि मसीह में आप कौन हो। The gospel is not about what you do, the gospel is about who you are in Christ. मैं एक हिरन को लूं, I take a deer, क्योंकि कई लोग मसीह लोग सोचते हैं मसीह जीवन ऐसा है। because many people think मैं that's एक how हिरन को Christian लूं, life is. I take a deer उसके ऊपर चीता वाले धब्बे बना दूं and I बाहर से। make the marks of a cheetah on it. अब उसे ट्रेडमिल में भागना सिखाऊं। And I teach him how to run on a treadmill. हिरन कभी भागेगी चीता जैसे? Will a deer ever run like a बताओ। cheetah? हिरन कभी भागेगी चीता जैसे? Can a deer run like a cheetah? नहीं भाग सकती, It cannot run. क्योंकि हिरन हिरन है Because a deer और is a चीता deer. चीता है। A cheetah is a cheetah. पापी पापी है और धर्मी धर्मी है। A sinner is a sinner and a righteous man is a righteous man. We focus about doing. God is focusing on being. Know who you are, then you will do what I have ordained you to do. हमारा पूरा ध्यान होता है क्या करना पे। परमेश्वर का पूरा ध्यान है तुम कौन हो इस बात पे, क्योंकि जब तुम जानोगे तुम कौन हो, तुम वो करोगे जिसके लिए मैंने भेजा है। Amen. Hallelujah. तो परमेश्वर कह रहा है, The Lord is saying, उसका जो उद्देश्य मानव जाति के लिए था वो बदला नहीं है। His purpose for mankind has not changed. प्रकाशित वाक्य 5:10 में कह रहा है, क्योंकि मैंने तुम्हें राजा और याजक बना दिया है, तुम पृथ्वी पे प्रभुता करोगे। Revelation 5 and he's saying, because I have made you kings and priests on the earth, you will reign on the earth. मगर यही बात तो जेनेसिस 1:26-27 में कहा था कि मैंने तुम्हें प्रभुता करने के लिए बनाया है। But this is the same thing he said in Genesis 1:26-27, I have made you to rule and reign, have dominion on the earth.
आमेन। अरे भैया, आप रचे ही गए हो राज्य और प्रभुता करने के लिए। The only reason why you were made is to have dominion, to rule and reign on the earth. आमेन। परमेश्वर ये नहीं कह रहा कुछ करेंगे कुछ नहीं करेंगे। God is not saying some will reign, some will not reign. उसका वचन कह रहा है क्योंकि तुम राजा और याजक हो, His word says, because you are a king and a priest, तुम पृथ्वी पर राज्य करोगे। you will reign on the earth. आमेन। Amen. हालेलुया। रोमियो 5:17, Romans 5:17. क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और अनुग्रह की बहुतायत, हिंदी में ना कुछ इंटरप्रिटेशन में अनुग्रह की बहुतायत और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। For if by the one man's offense death reigned through the one much more those who receive abundance of एक grace. मिनट ध्यान से सुनो, बोलो those who receive, not those who do. वो receive. लोग जो ग्रहण करते हैं, वो जो करते हैं ग्रहण, जैसे यीशु ने क्रूस में पाप के स्वभाव को रिसीव किया, वैसे ही हमने भी धार्मिकता के स्वभाव को रिसीव किया। Just as Jesus received the nature of sin on the cross, we also receive the nature of righteousness through that cross. और वो महान अदला बदली क्रूस में हुई। And that great exchange happened on the cross. यीशु मसीह ने मानव जाति के पाप के स्वभाव को ले लिया और अपनी धार्मिकता को मानव जाति को सेंत मेत में दे दिया। Jesus took all the sin nature of mankind and he gave his nature of righteousness to us all. मगर ध्यान से सुनो, लिखा है those who receive। But here carefully it says, वो जो उसको लेते हैं। कई लोगों ने लिया ही नहीं अभी तक। Many people have not taken it तो yet. कहते हैं नहीं, They say no. फरीसियों ने नहीं लिया था। क्यों? The Pharisees did not take it. Why? याद है आपको लास्ट संडे? Remember last Sunday? They did not submit to the righteousness of God because they were seeking to establish their own righteousness. वो परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन हुए ही नहीं, क्योंकि अपनी खुद की धार्मिकता बनाने बैठे थे। या तो आप सोच रहे हो क्योंकि मैं दूसरों से ज्यादा बाइबल पढ़ता हूं, ज्यादा उपवास करता हूं, ज्यादा प्रार्थना करता हूं, तो मैं दूसरे से ज्यादा धर्मी हूं, तो आप अपनी धार्मिकता स्थापित करने की कोशिश कर रहे हो। Either you're thinking because I read more Bible than the others, I fast more, I pray more than the others, so you're trying to establish your own righteousness. So आपकी धार्मिकता ऐसे होगी, So your righteousness will be like this. कुछ स्टॉक मार्केट जैसे दिखेगी। It'll look like stock market. ऊपर नीचे। सो अगर यीशु मसीह इस दिन आ गया तो हालेलुया। If Jesus came on that day, मगर अगर आपने यीशु की धार्मिकता ली है तो वो हमेशा एक समान है, बदलती नहीं है। but if you have received the righteousness of Jesus, it is always the same, it never changes. आमीन। मैं चाहता हूं, मैं आराम से इस वचन को बता रहा हूं, हल्के हल्के करके हम सीखेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, इस वचन के ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। I am telling you, everything is dependent on this word. अगर आप समझ गए कि जो यीशु मसीह ने आपको धार्मिकता दी है वो कितनी महान है, आप पाप की आदतों से बाहर आ जाओगे, आप बीमारियों से बाहर आ जाओगे, आप कर्जों से बाहर आ जाओगे, आप डिप्रेशन से बाहर आ जाओगे, आप एक हार के जीवन से बाहर आ जाओगे और आप एक जयवंत जीवन जियोगे मसीह यीशु में। If you understood how great is this righteousness that Jesus has given to you, you'll come out of sicknesses, out of depression, out of everything, and you'll start to live a victorious life on the earth. जिन्होंने क्या ग्रहण किया है? Abundance of grace. Those who receive abundance of grace, Abundance of grace को क्या बोलते हैं? Favor. उसको तरफदारी कहते हैं। बोलो favor. तरफदारी। Hallelujah. Favor धर्मियों के लिए। The सुना favor आपने is मैंने for the क्या कहा? righteous.
फेवर धर्मियों के लिए है। Favor is for the righteous. और धर्मी कौन है परमेश्वर की नजर में? Who are जिन्होंने righteous? उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है। Those who have believed on his son Jesus. क्या होगा? What will happen? They will reign in life. हिंदी बाइबल में कर दिया अनंत जीवन। वो जीवन में राज्य करेंगे। The Hindi Bible says eternal life is not. रेवलेशन 5:10 में क्या पढ़ा आपने? कहाँ राज्य करेंगे वो? What did you read in Revelation 5:10? They will rule on the earth. कई लोग सोचते हैं हम कहीं बाहर जाएंगे ना तो वहां हम आशीषित रहें, कनाडा जाएंगे। अरे यार ये Some people think if we go to a different country, we will have dominion there. अरे धर्मी हो तो जहां हो वहां फूलोगे फलोगे, जहां हो वहां ब्लेस होगे, जहां हो वहां परमेश्वर की भलाई को देखोगे। आपको अपनी ज्योग्राफिकल लोकेशन चेंज करने की जरूरत नहीं है आशीषें देखने के लिए। आशीष दुबई में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, अमेरिका में नहीं है, आशीष मसीह यीशु में है। When you are righteous, wherever you are, you will flourish. God will make you prosper wherever He has kept you. Blessings are not in Dubai, Canada. Wherever God has placed you there, He will bless you because the blessing is in Christ. प्लीज मेरे हृदय को समझिए, बिल्कुल जाइए कनाडा, Go to Canada. दुबई, if you have to. ऑस्ट्रेलिया, Australia. इजिप्ट, जहां प्रभु आपको ले जाए। Wherever the Lord takes you, go. मगर इसलिए नहीं कि वहां जाऊंगा तो आशीषित होऊंगा। But not- आशीषित हो इसलिए जाओ, Not because if I go there, आशीषित I'll be हो blessed. इसलिए जाओ। Go because you are वेकेशन blessed. में जाओ, अपने परिवार को ले जाओ, बोलो मैं आशीषित हूँ। Go on a vacation. Take your family with you because you are blessed. आमेन। बोलो आई एम ब्लेस्ड। मैं आशीषित हूँ बोलो। कोई बोले क्यों हो आप ब्लेस्ड? Someone डीडीए says, में why- फ्लैट निकल गया क्या? Why are you blessed? Did you get a flat from DDA? क्यों हो आप ब्लेस्ड? Why are you blessed? क्या हुआ? प्रमोशन हो गया? What happened? Are you promoted? अरे मैं ब्लेस्ड हूँ क्योंकि मैं मसीह में हूँ। I am blessed because I'm in Christ. आप ब्लेस्ड हो क्योंकि आप मसीह में हो। I am blessed because I'm in Christ. आमेन, हालेलुया। ब्लेसिंग की एक लोकेशन है, There is a location of blessing. एंड द लोकेशन ऑफ ब्लेसिंग इज And the location, उसकी location इन क्राइस्ट जीसस। मसीह यीशु के अंदर। जो मसीह में है वो आशीषित है। Whoever is in Christ is blessed. आमेन, हालेलुया। कुछ सीख रहे हो? Are you learning something? ये वचन हमें असली पवित्रता की तरफ ले जाएगा। This word will lead us into true holiness. वरना ऐसा है कि जैसे मैं एक हिरन को बोल रहा हूं, "हे, चीता बन।" Otherwise, I'm trying to tell a deer, act like a cheetah. 4 साल हो गए तेरे को ट्रेडमिल में भगाते हुए, It's been 4 years I've made you run on अभी the भी तो treadmill. 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से You ही भाग still रहा run है। at 40 kilometers per hour. चीता कहे मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ पास्टर, बहुत ट्राई कर रहा हूँ। The deer is saying, I'm trying hard, pastor. शराब पीता है, You drink. बाइबल में नहीं पढ़ा। Have you not read in the Bible? अरे एक पापी पाप ही तो करेगा। A sinner will sin. अगर पापी लोग धर्मी हो सकते अपने आप से, तो हमें क्यों एक उद्धारकर्ता की जरूरत पड़ती? If the sinners could have become righteous on their own works, then why did we need a savior? आमेन, हालेलुया। चलिए रोमियो 5:19 कुछ सीख रहे हैं हम? ओके, रोमियो 5:19। Romans 5:19. For as by one man's disobedience many were made sinners. क्योंकि जैसे एक मनुष्य की अनाज्ञाकारिता के द्वारा बहुत लोग पापी ठहरे। एक मिनट भैया, आदम से मिले कभी आप? मिला कोई आदम से? Did you ever meet Adam? हाँ? Has anyone met Adam? ये फालतू में डिसोबे कर दिया गार्डन में, He disobeyed in the और garden. आपको और मुझे पापी बना दिया। And you and I became sinners. क्या कह रही है बाइबल? What is the Bible saying? क्यों बने? पूरी दुनिया पापी क्यों बनी? आपने पाप किया था? Why is the whole world, किसके पाप ने आपको पापी बनाया? whose sin made us sinful? हाँ, आपकी बाइबल में लिखा है, Your Bible says this. क्योंकि जैसा एक मनुष्य, बोलो एक मनुष्य, Because as one man's disobedience, एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी बन गए। as one man's disobedience जो made यहाँ बहुत है, many. ऑब्वियसली सब बन गए, बट बहुत टॉक्स अबाउट द मैसिवनेस, द मल्टीट्यूड्स,
कि एक आदमी की वजह से बहुतों को उसने अफेक्ट कर दिया. It says, although all became sinners, but it's the massiveness of his sin that made all sinners. हाँ, आपने और मैंने क्या किया? What did you and I do? आप और मैं क्यों पापी बन गए बताओ? Why did you and I become sinners? क्योंकि हम आदम में थे. Because we were in Adam. अब ध्यान सुनो. Hear carefully. आप जब पैदा हुए उससे पहले आप कहाँ थे? When you were born, before that, where were आत्मा you? परमेश्वर से आई मगर शरीर में आप कहाँ थे? आप अपने पिता के अंदर थे. The spirit came from the Lord, but you were in your father's body. राइट? हम सब अपने पिता के अंदर थे. We all were in our father. इसीलिए बाइबल कहती है कि जब इब्राहिम ने दशवांश दिया So the Bible says, when Abraham gave तो उसकी tithe, वंशों ने दशवांश दिया जो उसके अंदर थी. then his descendants also gave a tithe that were तो in him. जो कुछ आप करते हो आपकी आने वाली जनरेशंस को अफेक्ट करता है. So whatever you do affects your coming generations. सो आदम ने पाप किया. Adam sinned. और ध्यान से सुनिए इस बात को. ओके, Hear carefully. कहाँ गया है? ओके, हालेलुया, प्रेज गॉड, आमेन. सीख रहे हैं हम कुछ? या सो एडम, अब मैं पैदा होने से पहले कहाँ था? आप अपने पिता के अंदर. मेरे पिता कहाँ थे? अपने पिता के अंदर. वो कहाँ थे? अपने. करते 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 अगर हम सब पीछे जाते रहे, हम सब कहाँ थे? आदम के अंदर. I was in my father was in his father, and if we go back, we were all in Adam. So we were in Adam. हम सब आदम में थे. कहाँ थे हम? इन एडम, आदम में थे. तो जो आदम के साथ हुआ वो उसके सारे आने वाले जनरेशंस के साथ So होगा. whatever happened to Adam happened to all his coming generations. जब आदम पापी बन गया When Adam became a तो sinner, जो कुछ उससे आए वो सब पापी थे. then all those that came from him were also sinners. Amen. So आदम ने पाप किया. Adam sinned. आदम ने क्या किया? Disobedience, He disobeyed. अनाज्ञाकारिता. और क्या किया उसने? क्या किया? सबको क्या बना दिया? And what that did was it made everyone a sinner. और खून से वो स्वभाव आगे आता गया. And through the blood, that nature kept on transferring further. इसीलिए खून को समझना बहुत जरूरी है. This is why it's important to understand the blood. इसीलिए दूसरे आदम को भी खून बहाना पड़ा. This is why the second Adam also had to shed his इसीलिए blood. मसीह यीशु को कहा गया है लास्ट एडम. This is why Lord Jesus is called the last Adam, आखिरी आदम. ये दोनों मानव जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं. Both of them represent the humankind, the mankind. दो तरह की प्रजातियां हैं इस पृथ्वी में अभी. Right now there are two kinds of. जानते हैं आप? हाँ, इसीलिए तो कई मसीह लोग, क्रिश्चियन जानते ही नहीं वो कौन है भाई. यही तो दिक्कत है. Many believers, many क्यों Christians don't अभी know भी who they are. मिल्क पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं. Because they are still drinking from milk. वो सोचते हैं सुसमाचार है, परमेश्वर ने हमारे पाप माफ कर दिए, अब प्रभु करे अब पाप मत करना. They think the gospel is, oh, God has forgiven our sins. Now He's saying, now you don't. अभी तक तो माफ कर दिया, आगे नहीं करूंगा. Till now I have forgiven your sins. Now I will not अब forgive अगर them. तूने पाप करा If you sin now, तो देख ले जल रहा है बहुत तगड़ा. then the fire. Look at the fire. समझ रहे हैं? सुसमाचार को नहीं समझे. They don't understand the gospel. पौलुस कहता है सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट होती है. Paul the apostle says, in the gospel is revealed the righteousness of God. और दुख की बात यह है कितने लोग कह रहे हैं हम सुसमाचार की मीटिंग, बोल रहे हैं गॉस्पेल मीटिंग, वहां सिखाते तुम श्रापित हो, तुम ये हो, तुम वो हो. अरे कौन सी धार्मिकता है? मनुष्य की धार्मिकता स्थापित कर रहे हैं, वो कोई गॉस्पेल नहीं है. The sad thing is many people say they do a gospel meeting and they say you're cursed, you're this, you're that. That's no gospel at all. असली में सुसमाचार वो है जिसमें परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट होती है मनुष्यों के ऊपर. The true gospel is one in which God's righteousness is revealed over mankind. Amen. So इस बात को समझो. दो तरह की रेस है अभी, दो तरह की प्रजाति है पृथ्वी पे. There are two kind of races, two kind of species on the earth. मनुष्य जाति. Mankind. क्या आप जानते हो आप मनुष्य नहीं हो? Do you know you're not from the mankind, the कई humankind. मसीह लोग हंसेंगे इसको सुन के. Many believers will laugh at this. हंस भी रहे हैं अभी. See, many believers, many Christians don't know what even a Christian means. बहुत से विश्वासी तो ये भी नहीं समझते कि मसीह होने का अर्थ क्या होता है.
दूसरा कुरिन्थियों 5:17 लगाइए। 2 Corinthians दूसरा 5:17. कुरिन्थियों, फिर हम वापस स्क्रिप्चर में आएंगे। We'll come दूसरा back to this. कुरिन्थियों 5:17। इसीलिए यदि कोई मसीह में है, कहाँ है? ध्यान से सुनो। Therefore, if anyone is in Christ, मसीह में विश्वास नहीं करता, या वो नहीं कह रहा हूं मैं, this is not talking about believes in Christ. वो कह रहा है यदि कोई मसीह में है, This is saying if someone is in Christ, यदि कोई मसीह में है, If someone is तो in वो Christ. क्या है? एक, हाँ क्या है? नई सृष्टि है। he's a new creation. इसका मतलब क्या है? What does कई this लोग mean? सोचते हैं अच्छा हाँ अब ना पहले हम सिगरेट पीते थे, अब हम सिगरेट नहीं, अब हम थोड़ा अच्छे हो गए, Some ज्यादा people मसीह में think, आके ना हम थोड़ा अच्छे हो गए। Oh, earlier we used to smoke, now we don't smoke, now we become a little better. अरे आपके आदमिक जो एडमिक स्वभाव है, परमेश्वर ने उसको क्रूस पर क्रूसिफाई कर दिया और एक नया क्रिएशन, एक नई सृष्टि। नई सृष्टि का मतलब क्या है भाई? Christ crucified that Adamic nature on the cross and he's given you a new nature. What is this new अच्छा creation? एक बात बताओ मुझे, अगर आपका घर है If you have a new house, if you have और a house आपने आगे की थोड़ा बालकनी तोड़ी and you broke the balcony in और front, थोड़ा बड़ा कर दिया उसको, and you extended the balcony या तो आपने घर में पेंट करा दिया, थोड़ा गंदा और गंदा व्हाइट पेंट करा दिया, and you did some renovation और आप कह रहे हो देखो मैंने नया घर लिया and you है, say, see, I have a new house, I bought a new house. क्या वो नया घर है? Is that a new house? नहीं, No, वो नया घर नहीं है, that's not a new house. वो रिफर्ब, मतलब समझ रहे हो ना क्या है? नई मरम्मत कर दी, पेंट वेंट कर दिया। यही धर्म करने की कोशिश कर रहा है, पेंट करने की कोशिश कर रहा है लोगों को बाहर से। This is what religion is trying to do. It's trying to paint people from the outside. इसीलिए यीशु मसीह ने सदूसियों से कहा, कपटियों तुम उन कब्रों की तरफ से हो जो बाहर से तो व्हाइट वॉश्ड है, अंदर से सड़े हुए हो तुम। That's why Jesus told the Pharisees, you hypocrites, you are like those graves which are whitewashed on the outside but you're rotten inside. नई सृष्टि का मतलब नई सृष्टि भाई। A new creation means a new creation. एंड एक बाइबल का जो वर्जन है उसमें ऐसा लिखा है, अ स्पीशीज दैट नेवर एग्जिस्टेड बिफोर। बाइबल का एक अनुवाद ऐसा कहता है, एक ऐसी प्रजाति जो आज से पहले पृथ्वी पर थी ही नहीं। क्या आप जानते हो आप एक नई प्रजाति हो? Do you know you are a new species? मसीह का मतलब ये है भाई, This is what it means to be a Christian. बाहर से हम वैसे ही दिखते हैं, Outside, externally we look the same. अंदर सब कुछ बदल चुका है। Inside everything is changed. आप जानते हो जो मसीह है, जो असली में मसीह है, मैं धार्मिक क्रिश्चियन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं जो उसने नया जन्म पाया, मसीह ने, हर एक जो मनुष्य है उसके अंदर एक आत्मा रहती है। जो मसीह लोग हैं उनके अंदर दो आत्माएं रहती हैं, उनकी आत्मा और पवित्र आत्मा। I am not talking about a religious Christian, but I'm saying everyone who is a born again believer, everybody else has one spirit in them, but every born again believer has two spirits, their own spirit and the Holy Spirit living inside of them. Amen? इस बात को आपको समझना है। This is what you need to understand. आपको सुसमाचार को आज प्रार्थना करो, एक प्रार्थना करो, बोलो पवित्र आत्मा मेरी समझ को खोल दे कि मैं सुसमाचार के भेद को समझ सकूं। Come on, pray with me. Holy Spirit, open up my understanding that I may understand the mystery of the gospel. Amen? So जब तक हम आदम में थे, As long as we were in Christ, जो आदम के साथ था हमारे साथ था। whatever happened to Adam happened to us when we were in Adam. तो इस रेस में हमें मरना जरूरी था। So in that race we had to die. आई डोंट नो, इस सीरीज को महीनों ले जा सकते हैं क्योंकि इतना कुछ मीट है इसके अंदर। We can take this series into months. There's so much meat here. आप जानते हैं इसीलिए बपतिस्मा जो है This is वो why. आदम, जो पुराना आदम है, उसकी मृत्यु को दर्शाता है। This is why baptism represents the death of the old Adam. ध्यान से सुनिए, आप कैसे आए? How were you You born? came through the water. You were born. आप पानी के साथ पैदा हुए, पानी में से पैदा हुए. कहते हैं ना वाटर ब्रोक। Yeah. आप वूम में जब थे, आप गर्भ में जब थे, तो किससे घिरे हुए थे? पानी से। When you were in the womb, you were surrounded by water. You came submerged in water. The last Adam died submerged in water. जब आपका जन्म हुआ तो पानी में आप थे और जो आखिरी आदम मरा वो पानी में मरा. अगर आप इस बात को समझ सकें,
जो पानी का बपतिस्मा है वो मृत्यु का बपतिस्मा है, पहले आदम की मृत्यु का। The baptism of water is the baptism of death of the first Adam. यीशु मसीह पहले आदम के साथ एक होकर आ गया। Jesus became one with the first Adam when he came. पाप का स्वभाव ले लिया He put on the nature और of sin क्रूस पर जाकर मर गया। and went to the cross उसको and मरने died. की जरूरत नहीं थी, वो He had- परमेश्वर है। He had no need to die. He is God. मगर वो किसको मारना चाहता था? But who did he try to kill? पुराने आदम के स्वभाव को। He wanted to kill the old sin nature of Adam. पुराने आदम के स्वभाव को मरना जरूरी The था। old sin nature of Adam had to die. हालेलुया। चलिए रोमियो 6 एक Romans मैं 6. सोच रहा था अगले हफ्ते आपको बताऊंगा, बट अभी फ्लो आ रहा है तो लेट्स फ्लो। हालेलुया। रोमियो 6:1 Romans 6. अगर आपके ऊपर ये एलिगेशन ना लगे If कि इसका मतलब ये जो सिखा रहे हैं इसका मतलब हम पाप करें, इसका मतलब आप सुसमाचार सिखा ही नहीं रहे हो। if you are not, if this allegation is not put on you that this means do we go and sin, that क्योंकि means ये you're not teaching gospel. एलिगेशन अपोस्टल पॉल के ऊपर भी लगा। Because the same allegation was also put on Apostle Paul. जब आप वो सुसमाचार प्रचार करोगे जो अपोस्टल पॉल ने करा तो आपके ऊपर भी एलिगेशन आएगा। When you preach the same gospel that Apostle Paul preached, you will also get the same allegation that he तो got. लोगों ने बोला होगा अच्छा मतलब अब अनुग्रह तो क्या हम पाप करें? People said, oh, now we have grace, so does that mean we go and sin? वो क्या कह रहा है देखो। What is he रोमियो saying? 6:1 जल्दी से लगाओ। Romans 6:1. सो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? दूसरी आयत, कदापि नहीं। Certainly not. ये ध्यान से सुनिए। Hear carefully. जो लोग कहते हैं पवित्रता पवित्रता नहीं सिखाते, ध्यान से सुनो। इस वचन से असली पवित्रता में चलोगे आप लोग। All those who say you don't teach holiness, this is the verse that will teach you to walk in true holiness. जब हम पाप के लिए मर गए, When we died to sin, गुड न्यूज क्या है भाई? What गुड is the good न्यूज news? है कि आप मर चुके हो, ये गुड न्यूज है। the good news is you have died to sin. ओ पास्टर, ओ मैं इनसिक्योर हूँ, ओ पास्टर मैं ना ज्यादा नहीं हो गया, ओ पास्टर मैं, अरे वो पुराना आदम मर चुका है, तुम एक नई सृष्टि हो यीशु मसीह में। Oh, pastor, I feel insecure. I am this and that. That old Adam has died. You have died to sin. You are a new creation in Christ. So your weaknesses died, आपकी your कमजोरियां मर addictions गई, died, आपकी your बुरी लतें मर limitations गई। died. It died with your old nature. आपकी बुरी आदतें, बुरी लतें, सब कुछ मर गई उस पुराने नेचर के साथ। Amen. जब हम पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें क्यों कर जीवन बिताएं? When we have died to sin, how shall we live in it any longer? Verse 3, क्या तुम नहीं जानते, Or do you not know? जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। As many as were baptized into Christ were baptized into his death. जैसे आपकी शुरुआत हुई थी पहले आदम की, वैसा ही अंत भी हुआ। पानी से घिरे हुए आप पैदा हुए, पानी से घिरे हुए आप वापस मर गए। As the first Adam was born, so the first Adam also died. You were born in water, you died in water. इसीलिए पानी का बपतिस्मा किस चीज का बपतिस्मा है? हाँ, किस चीज का? कई लोग कहते हैं बपतिस्मा लेना है, क्यों लेना है? हमें तो नहीं पता, बस सब ले रहे हैं तो हम भी ले रहे हैं। अरे भैया, Many people जानो सुसमाचार को, जानो इस प्रकाशन को। जब पानी के अंदर जाते हो आप कहते हो अब मैं आदम से अलग हो चुका हूं, अब मैं पहले आदम में नहीं हूं, अब मैं मसीह यीशु में हूं और एक नई सृष्टि हूं। Many people say, I want to be baptized, but they don't know why. But this means when you take the baptism of water, you disconnect yourself from the first Adam. Now you are a new creation in Christ. हालेलुया। जिस दिन आप जान जाओगे सुसमाचार कितना महिमा से भरा हुआ है, जिस दिन आपको ये प्रकाशन आ गया, आप डांस करोगे अपने कमरे में। The day you find out how glorious the gospel is, you'll be dancing around in your room. अपोस्टल पॉल के पांव में, हाथों में, सब जगह जंजीरें बनी थी। वो कहता है आनंदित रहो। There were chains everywhere in Apostle Paul's body, and he says, "Be rejoice, I tell you." क्योंकि नया
क्रिएशन डिप्रेस नहीं हो सकता। Because new creation cannot be depressed. आमीन। वापस लगाइए उसको, तीसरी आयत। हालेलुया। जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, तो किस चीज का बपतिस्मा लिया? उसकी मृत्यु का। As many as were baptized into Christ were baptized into his death. बपतिस्मा केवल एक क्या है? घोषणा है। Baptism is a declaration. एक घोषणा है कि मैं, मेरा जो पुराना मनुष्य था वो मसीह के साथ एक होकर क्रूस पे चला गया और मर गया। That my old nature died with Christ on the cross. आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? मसीह यीशु आया था पुरानी एडमिक रेस को खत्म करने, Jesus had come to destroy the old Adamic race और एक नई प्रजाति को शुरू करने। and to start a new species on the earth, इसीलिए उसको क्या कहा गया? which is why he is उसको called कहा गया आखिरी आदम, the last Adam. नॉट सेकेंड एडम, दूसरा आदम नहीं. लास्ट आदम, यानी इसके बाद और कोई आदम आने वाला है That नहीं। means there is no other Adam that's coming after him. अब सुनो, Now here, जैसा पहले आदम के साथ जो हुआ whatever happened to the first Adam, वो सब हमारे साथ भी हुआ। it also happened with all of us. ऐसे ही जो Similarly, आखिरी आदम के साथ हुआ वो आपके और मेरे साथ भी होगा। Whatever happened to the last Adam will also happen to you and I. वो मर के जी उठा, बाइबल कहती है हम भी मर के जी उठेंगे। He died and was resurrected. Bible says we will also be resurrected. मृत्यु का, नरक का, अधलोक का, पाप का, शैतान का, नए क्रिएशन के ऊपर कोई प्रभुता नहीं है। Death, hell, Hades, sin, Satan has no authority over the new creation. आमेन, हालेलुया। एक धर्मी जन नरक में नहीं जा सकता। A righteous man cannot go to hell. नरक के सांकले इतने ज्यादा पावरफुल नहीं कि परमेश्वर की धार्मिकता को बांध के रख सके। The chains of hell are not so powerful to tie the righteousness of God. आमेन, हालेलुया। अरे जानो सुसमाचार कितना महिमा से भरा हुआ है। Get to know how powerful this बाइबल gospel कह is. रही है कब तक दूध पीते रहोगे? अभी तक तो तुम्हें शिक्षक हो जाना चाहिए था औरों The को Bible बताने is के saying, लिए। till when will you keep drinking milk? By now you should have been teachers. आमेन, हालेलुया, ग्लोरी। चौथी आयत लगाइए। ध्यान से सुनो। उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े। अरे भैया, Therefore we were buried with him through baptism into death. पास्टर जी हम चर्च तो आना चाहते हैं मगर बताओ हमें गाड़ा कहाँ जाएगा? अरे तुम्हें गाड़ दिया गया है। Oh pastor, we want to come to church, but please tell us where are we going to be buried? You have already been buried. अरे सुसमाचार समझो, तुम पुराना मनुष्य गाड़ दिया परमेश्वर ने। Understand the gospel. The old man was buried in Christ. आपकी बाइबल में है ये लिखा? This is in your Bible, right? हाँ, क्या लिखा है? What does it say? उस मृत्यु का बपतिस्मा, ध्यान सुनो, जब भी पानी का बपतिस्मा लेते हो आज के बाद इस प्रकाशन को समझ जाना कि पानी के बपतिस्मे का मतलब क्या है। लोग कहते हैं कन्वर्ट कर रहे हैं, भाई कन्वर्ट नहीं कर रहे, मार रहे हैं। When you take the water baptism, understand what it means. मृत्यु का बपतिस्मा है। People say they are converting. They're not converting. That's death. That's the baptism of death. आमेन। मृत्यु का बपतिस्मा है भैया, कन्वर्ट किसको करेंगे? मार रहे हैं। It's the baptism of death. We're not converting. We are killing. मार रहे हैं और गाड़ रहे हैं। We are killing and burying. आमेन। उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। Through that baptism of death, we were buried with him. ध्यान से सुनो, क्यों गाड़े गए? Why were we पुराना buried? आदम मर गया, The old Adam died. अब हम मसीह में हैं। Now we are in Christ. ताकि So that जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we should also walk in the newness of life. हालेलुया। 5वीं आयत, 5th verse. मतलब ये राइचियसनेस की चीज तो ऐसी है, हम पूरी रोमन्स एक वर्स बाय वर्स जा सकते हैं। We can go verse by verse in this series.
क्योंकि कोई और ऐसी पत्री नहीं जो धार्मिकता को ऐसे प्रकट करती है जैसे रोमियो की पत्री। There is no other letter that presents righteousness in this way. अब ध्यान सुनिए, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए यानी एक हो गए, For if we have been united together in the likeness of his death, if we were made one with him, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे या एक हो जाएंगे। certainly we also shall be in the likeness of his resurrection, will be one with him in resurrection. ओ पास्टर, हमें नहीं पता आगे क्या होगा। मैं बताता हूं, जो मसीह के साथ हुआ वही आपके साथ भी होगा। Oh, Pastor, we don't know what's going to happen in the future. I'm telling you, whatever happened to Christ will happen to you also. आमेन। Amen. यीशु मसीह के लिए लिखा गया है, परमेश्वर कहता है, दाऊद इस भजन को बोलता है कि तू अपने धर्मी जन को अधोलोक में सड़ने नहीं देगा। David says that you will not let the righteous rot in Hades. अगर आज भी डरते हो कि नरक चला जाऊंगा, नरक चला जाऊंगा, नरक चला जाऊंगा, क्योंकि नहीं जानते कि आप मसीह में हो और सेत मेत में धर्मी ठहराए गए हो। If you are still afraid that I'll go to hell, is because you do not know that you are righteous, wholly made righteous in Christ. Amen? आज हमारे जीवन का आधार ये नहीं है और हम पवित्र जीवन जिए कि हम नरक में ना चले जाएं। अरे नहीं। The foundation of our life is not, oh, let us live a holy life, otherwise we'll go to hell. No. Christianity is not trying to escape the fire. मसीहत आग से बचना नहीं है। Christianity is filled with fire. मसीहत आग से भरा होना है। Amen? Hallelujah. हम आग से भाग नहीं रही, वो कहता है वो अपने सेवकों को धधकती हुई आग बनाता है। We are not running from the fire. His word says he makes his ministers flames of fire. हालेलुया। 6वीं आयत, क्योंकि हम जानते हैं Because we know कि हमारा पुराना मनुष्यत्व, that our old nature, कौन सा था हमारा पुराना मनुष्यत्व? which old nature? पहले आदम से जो पैदा, मैं पंजाबी, मैं From the गढ़वाली, first मैं Adam. बंगाली, भैया क्रूस पे चला गया, पंजाबी, बंगाली, गढ़वाली सब। Whatever Punjabi, Bengali, Gadwali you were is on the cross now. यही आज तक कई मसीह नहीं समझे। Many believers have not understood Pastor this ji. till now. हमें लड़की चाहिए, Oh, Pastor, we want a girl, मगर अपने घराने की but we want from our own. अरे तुम्हारा घराना अब स्वर्ग का घराना Your है। household is now the household of heaven. आज भी पुराने आदम की तरह सोच रहे हो। Still you're thinking like the old एक Adam. व्यक्ति मेरे पास आया, One ये person बहुत गलत बात है। He said, this is very wrong. आप सेवा कर रहे हैं, आप गढ़वाल से, आपको गढ़वाल में जाना चाहिए सेवा करने। You're serving, you're from Gadwal, you should go to Gadwal to serve. मैंने, किसने कहा मैं गढ़वाल से हूँ? I said, who said I'm from मैंने, भाई Gadwal? मैं स्वर्ग से हूँ। I am from heaven. पुराना मनुष्य तो क्रूस पे जा चुका है, The old- आपकी पुरानी पहचान क्रूस पे जा चुकी है। The अब old बाइबल man is on the कहती है cross. तुम स्वर्ग के नागरिक हो। The old man is on the cross. The old identity is on the cross. The Bible says you are citizens of heaven. हालेलुया। नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, आते रहो। If you don't understand, it's okay. Keep coming. It's okay. मगर जिस दिन आप जान जाओगे सुसमाचार कितना ग्लोरियस है, But the day you find out how glorious the gospel is, क्योंकि हम जानते हैं, Because पौलुस we कह know. रहे हैं हम जानते हैं। आज आपसे एक सवाल है, क्या आप जानते हैं? today there's a question for you. Do you know? क्योंकि हम जानते हैं कि Because we know. हमारा पुराना मनुष्य था उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। That our old nature was crucified with him on the cross. कई लोग कहते हैं यीशु हमारे लिए क्रूस पे गया। हाँ, मगर यीशु अकेला नहीं गया क्रूस पे। Some people say, oh, Jesus went to the cross. Yes, but he did not go alone. हम उसके साथ We मारे गए, were killed with him. हम उसके साथ गाड़े We गए were buried with him. और हम उसके साथ एक नए मनुष्यत्व के साथ जी उठे। And with a new nature, we, as a new species, we were resurrected. अब ध्यान से सुनो, केवल एक पवित्रता में चलो, पवित्रता में चलो, आप पाप के ऊपर कभी जय नहीं पा सकते। Just by saying, live in holiness, you can never have dominion over sin. परमेश्वर को एक प्रबंध करना पड़ा God had to make a provision कि आप पवित्रता में चलो। that you can walk in holiness. देखिए, हमारा पुराना मनुष्य तो उसके साथ क्रूस पर चढ़ा है,
ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। that the body of sin might be done away with. इस शरीर की बात नहीं कर रहा है। It's not talking about this और body. ये व्यर्थ हो जाता तो If this was gone, we would not be here. ये तो पवित्र आत्मा का देह है भाई। This is the वो body of उस Holy Spirit now. sin nature की बात कर रहा है जो आपसे पाप कराता है। This is talking about the sin nature that makes you sin. जब आप इस प्रकाशन में चलोगे, When you walk in this revelation, मैं पाप के लिए मर चुका हूं। that I have died to sin. आप कभी गए हो एक डेड बॉडी के पास? Have you ever gone to a कोई dead बंदा body सिगरेट पी रहा है, डेड बॉडी वाला पिएगा? and someone is smoking and says to a dead body, "You want to क्या smoke?" बोलेगी डेड बॉडी? What will the dead body say? आप ऑफिस में हो, You're in the office. सारे लोग सिगरेट पी रहे हैं आपके बगल में, Everyone is आपके smoking ऑफिस around में कोई इवेंट चल रहा है, वहां लोग शराब पी रहे There's an हैं, event, people are तो drinking. कहेगा पिएगा? They'll say, "Will you drink?" मगर आपका पुराना मनुष्य, But your old man is dead. पवित्रता विल पावर से नहीं आती, पवित्रता स्पिरिट पावर से आती है। Come on. Holiness does not come by willpower, it comes by the Spirit power. आमेन। पवित्रता इस प्रकाशन से आती है कि मेरा पुराना मनुष्य पाप के लिए मर चुका है। Holiness comes by this revelation that my old nature has died with Christ. आमेन, हालेलुया। सो हमारा पुराना मनुष्य उसके साथ क्रूस, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें। That our old man was crucified with him so that the body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves of sin. जो कहते रहते हैं, All those who say, पास्टर अंकित सजवान पवित्रता के बारे में सुनाते, आज सीखो असली पवित्रता कैसे आती है। all those who say Pastor Ankit Sajwan does not teach about holiness, today learn how true holiness comes. प्रभु मैं पापी हूँ ऐसे कह के पवित्रता नहीं आती, बल्कि और पाप करोगे ये बोलोगे तो। Holiness does not come by saying, "Oh, I'm a sinner." You will sin more when you say that. क्योंकि अगर पापी हो Because if तो you're पाप करोगे। if you're a sinner, you will sin. अगर मछली है तो तैरेगी, If it's a fish, अगर it will बंदर है swim. तो पेड़ में चढ़ेगा, If it's a monkey, it'll climb the trees. अगर उकाब है तो ऊंचाइयों पे उड़ेगा। If it's an eagle, it will fly, soar high. ध्यान से सुनो, Here परमेश्वर ने इब्राहिम को, जिसकी कोई संतान नहीं थी, नाम बदल दिया और उसका नाम कर दिया जातियों का पिता। God, पहले नाम बदला, प्रगटीकरण बाद में आया। God took Abram and made his name Abraham, which means a father of nations. First, he changed his name. The कैसे आया representation came later. उनका? सारा ये नहीं बोली प्रभु मैं बांझ हूं, प्रभु मैं बांझ हूं, ऐसे करके बच्चा नहीं आया उनका। Sarah wasn't saying, "Oh, I'm a barren, I'm a barren." This is प्रभु not ने how she उनका नाम produced. बदल दिया, जातियों का पिता, जातियों की माँ। The father changed their name, the father of nations and the mother of nations. परमेश्वर ने आपका नाम बदल दिया, स्वभाव बदल दिया, बोला अब तू पापी नहीं, तू मेरी धार्मिकता है। पाप का तेरे ऊपर कोई दासत्व नहीं, कोई प्रभुता नहीं है। God has changed your name. He has changed your nature. He says you are righteous. Now there is no more dominion of sin over you. Amen. Hallelujah. अब इस प्रकाशन से जी के देखो। Now live with जब this revelation. टेम्पटेशन आए When temptations come, तो अपने आप को बोलो आई एम डेड टू सिन। tell yourself, मैं मर चुका क्योंकि हूँ मेरा पाप के लिए. पुराना मनुष्य तो यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ गया। My old nature was crucified with Christ. Amen. कि आप पाप के दासत्व में ना रहो। That you would not be ये मैंने the slaves सोचा था of थोड़ा sin. और अगले संडे बताएंगे, बट ठीक है, लेट मी फ्लो। हालेलुया। अब वापस आ जाते हैं, वापस आ जाते हैं, Let us come back. वापस आ जाते हैं। दिक्कत पापों से नहीं है। The problem is not with sins. परमेश्वर को पापों से दिक्कत नहीं है, God does क्योंकि not have, पापों की क्षमा है। God does not have the problem with sins because there is forgiveness for sins. मगर जब तक पाप का वो स्वभाव मनुष्य के अंदर रहता, परमेश्वर माफ करता, वो करता रहता। परमेश्वर को रूट से उसको खत्म करना था। But as long as the sin nature abided in man, God would have forgiven, man would have sinned again. God would have forgiven, man would have sinned again. So God had to destroy that sin nature from the root. फिर से चलते हैं रोमन्स 5:19 में, रोमियो 5:19।
Hallelujah. For as by one man's disobedience many were made sinners. जैसे एक मनुष्य की अनाज्ञाकारिता के द्वारा बहुत लोग पापी ठहरे. जैसे आप पंजाबी क्यों? Why are you Punjabi? क्योंकि आपने पंजाबी घर में जन्म लिया. Because you were born in a Punjabi आपके पापा family. पंजाबी थे, आपके दादा पंजाबी थे, वो Your उनके dad- पापा पंजाबी थे, तो आप क्या होगे? आप बंगाली नहीं होगे, आप भी पंजाबी होगे. Your dad was Punjabi, his father was Punjabi. So, तो you also हमारा जब Punjabi. दादा पापी था तो उसने पापियों को ही जन्म दिया. So when our grandfather was a sinner, he also gave birth to sinners. मगर जो वो लीनिए जा रही है, क्या बोलेंगे उसको, जो वंश आ रहा है, परमेश्वर ने उस वंश में फुल स्टॉप लगाकर मुझे एक नया जन्म दे दिया और मैंने एक नए घराने में जन्म लिया. But God put a full stop on that lineage that was coming from Adam, and God disconnected me from it, gave me a birth in a new family, in a new household. Amen. लास्ट एडम कौन है? यीशु. आखिरी तो आदम. जब मैं पहले आदम में था, When I was in the first Adam, मैं पहले आदम में कैसे आया? how did I come in first Adam? हाँ, कैसे आया पहले आदम में? बाय बर्थ, जन्म लेने के द्वारा. जन्म लिया. मैं दूसरे आदम के अंदर कैसे, मैं आखिरी आदम में कैसे आया? How did I come in the last Adam? बाय बर्थ. जन्म के द्वारा. Amen. जितनों ने उसे ग्रहण किया, परमेश्वर ने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, जो ना मांस और लहू से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं. As many as have believed in God gave them the right to be called the children of God, who are not born by the will of flesh but by the will of God. हालेलुया. अगर आप समझ गए इस बात को If you कि understand मेरा वंश बदल चुका है, that my lineage has been changed. मेरा वंश बदल चुका My है. lineage has been changed. अब मैं परमेश्वर के घराने में मैंने जन्म लिया है. Now I am born of the household of God. इसीलिए बाइबल कहती है जो परमेश्वर से उत्पन्न हुए, यानी कुछ लोग हैं जो परमेश्वर से उत्पन्न हुए. That's why the Bible says all those who are born बाकी of आदम God. से उत्पन्न हुए. परमेश्वर ने आदम बनाया और आदम से उत्पन्न हुए. मगर अब एक नई सृष्टि है जो परमेश्वर से उत्पन्न हुई है. जो परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं वे इस संसार पे जय प्राप्त करते हैं. God made Adam and people were born from Adam, but now the Bible says those who are born of God, there are people that are born of God, and the Bible says they shall overcome the world. अगर आपको एक चीता दिखे, If you see a cheetah, अगर आप एक चीता देखो, चीता को चीता किसने बनाया? who made him a cheetah? हाँ, बर्थ. उसके उसने जन्म लिया चीता की तरह. It was born like that. जब चीता की तरह जन्म लिया When it was born like a तो cheetah, पेड़ पे नहीं चढ़ सकता, it cannot climb. चीता की तरह भागेगा, It can run like क्योंकि a चीता का स्वभाव उसके अंदर है. because the nature of a cheetah is in it. कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? How many people understand? हाँ, हालेलुया. ओह, आमीन. सोचो एक बड़ी बिल्ली है, Imagine there's a big cat. उसको ट्रेन किया जाए, क्या वो चीता बन जाएगी? If it's trained, can it become a cheetah? क्योंकि अगर चीता बनना है अंदर से चीता बनना If पड़ेगा. it had to be a cheetah, it had to be a cheetah from within. बाहर से धर्म कर्म के काम करके एक व्यक्ति धर्मी नहीं बन सकता. Externally doing the works of religion will not make a person righteous from within. परमेश्वर फेक राइचसनेस को ग्रहण, वो ऐसा है वैसी बाहर वो लगा दिया, चीता बन के झूठा आ गया. परमेश्वर कहेगा ये झूठी धार्मिकता मेरे सामने से हटा. God does not accept fake righteousness. It's like somebody sprays paint, tries to become a cheetah on the outside. God will say, remove this fake righteousness from before me. आमीन. समझ रहे हैं आप लोग मैं क्या कह रहा हूँ? परमेश्वर झूठी धार्मिकता को ग्रहण नहीं करता. God does not accept fake righteousness. वो केवल अपने पुत्र की धार्मिकता को ग्रहण करता है. He only accepts the righteousness of his son. और हमने क्या पढ़ा? What did we read? We received the gift of right. Say gift of righteousness. हमें धार्मिकता का गिफ्ट मिला है. मगर ये गिफ्ट आपको कब मिला? When did you get this gift? जब आपने नया जन्म लिया. When you were born again. When you were born again, जब आपने नया जन्म पाया, this nature of God ये परमेश्वर का स्वभाव was already in your DNA. आपकी बनावट में था. Oh, I pray that you'll get it. प्रार्थना करता हूँ समझे. Hear this. सुनिए. And Adam
can never become righteous by works. आदम कभी भी कामों के द्वारा धर्मी नहीं बन सकता था. आदम कभी भी धार्मिक कामों के द्वारा धर्मी नहीं बन सकता. Adam could have never become righteous by the works of righteousness. इसीलिए परमेश्वर को अपनी धार्मिकता सेतमेत में देनी पड़ी. Which is why God had to give his own righteousness as a gift. फिर से उस स्क्रिप्चर में आते हैं. हालेलुया. For as by one man's disobedience many were made sinners. जैसे एक व्यक्ति की आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे. एक बात बताऊं, as by यानी जैसे पौलुस बता रहा है exactly वैसे ही. Paul is saying exactly like that. जब आप आदम में थे, When you were in Adam, तो क्या हुआ? what happened? क्योंकि आप आदम में थे, Because you were in Adam, उसकी अनाज्ञाकारिता के कारण because of his disobedience, आप पापी बन गए. you became a sinner. ऐसे ही जब आप मसीह में हैं, Exactly like that when you are in Christ. So also by one man's obedience many will be made righteous. ठीक वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे. मैं देख रहा हूं कई लोगों के खुल रहे ढक्कन, अच्छी बात है, क्योंकि इस राइचियसनेस के मैसेज के बाद आप जय में चलना शुरू करोगे. After this message of righteousness, you will start to walk in victory. बीमारी का आपके ऊपर बीमारी प्रभुता नहीं कर सकती, क्योंकि जो राइचियस हैं, जो धर्मी हैं यीशु मसीह में, वो प्रभुता करते हैं. Sickness will not have dominion over you because those who are righteous, they have dominion. Amen. हालेलुया. अब अगर आप देखोगे वन मैन, ऊपर जो वन मैन है वो एम छोटा है क्योंकि वो छोटा एडम है. जो बाद में बड़ा मैन है वो बड़ा एम है क्योंकि वो यीशु मसीह है, परमेश्वर है. परमेश्वर क्योंकि मनुष्य बन गया, मगर फिर भी एम बड़ा है क्योंकि वो परमेश्वर है. If you see in English, the first man, the M is small because it's Adam, but the one man later, that's a capital M for God because he is almighty. अब मैं कैसे आपको बताऊं, अगर मैं इसके अंदर कुछ चीज डाल दूं और मैं इसको उठाऊं, if I put something inside the tissue and lift it up, मैं इसको उठाऊंगा, if I lift it तो up, जो इसके अंदर है वो भी ऊपर जाएगा, whatever is inside जो also इसके goes नीचे है up, वो भी नीचे जाएगा. whatever is down also goes down with it. समझ रहे हो? तो अगर मैं मसीह में हूं, If I am in Christ, मसीह कहाँ है अभी? where is Christ right now? कहाँ पे मसीह? Where is Christ पिता right के now? दाहिने हाथ बैठा है. He is seated at the right hand of God. आप कहाँ हो? Where are you? बाइबल कहती है क्या तुम नहीं जानते तुम भी पिता के दाहिने हाथ बैठे हो मसीह के साथ? Bible says, क्योंकि हम मसीह में हैं. जो मसीह की रियलिटी है, जो मसीह की वास्तविकता है, वो आपकी और मेरी भी वास्तविकता है. Bible says, do you not know that you are seated at the right hand of the Father? Whatever has happened to Jesus has happened to you. Whatever is his reality is also your reality now. हालेलुया. वो मर के जी उठा. He died and he rose up again. हम लोग ईस्टर अच्छा है, अरे आप ईस्टर क्यों मानते? हम ईस्टर इसलिए मानते हैं हमारा भगवान मर के जी उठा. अरे और गहरा मतलब है. Oh, you don't celebrate Easter, we celebrate Easter. Our God died and rose क्योंकि up. वो मर के जी उठा, इसीलिए आप और मैं भी मर भी जाएं. यीशु ने कहा तो भी नहीं मरोगे. Because he died and rose again, Jesus said, even if you die, you will not die. एक मसीह के ऊपर मृत्यु का कोई अधिकार नहीं है. Death has no power over a believer. Amen. Hallelujah.